Okay. Okay. Yes. Page number 122. Done. Chapter number 13. Yes. Chapter number 13. Page number 122. Right? So, second question is, have you done first question? क्वेश्चन आंसर वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया आपने रिटर्न? ओके. ओके, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया तो आपको तक पीडीएफ शेयर होगी, तब आप नोट डाउन कर सकते हो. फाइन. नाउ डू सेकंड क्वेश्चन ऑफ बैक एक्सरसाइज. सेकंड क्वेश्चन. से ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज द ट्रिप वाज मेड टू कैंटरबरी टू मीट अ लॉयर. यस. यस. यस दीपाली. हम्म. हम्म. बनानी है, क्यों नहीं बनानी? Now tell me answer of first part. The trip was made to Canterbury to meet a lawyer. Yes, Karthik. Yes, Suniksha. बेटा कार्तिक बताइए. कार्तिक, tell me its answer. It's true or false? Trip was made to Canterbury to meet a lawyer. Yes, Yashveer. Yeah, it's true. Chapter 3, third line में the next week we made a trip. Okay. हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा था नेक्स्ट वीक वी मेड अ ट्रिप टू कैंटरबरी. माई आंट टोल्ड मी दैट शी वॉज टेकिंग मी टू हर लॉयर. देन द क्वेश्चन इज द ट्रिप वॉज मेड टू कैंटरबरी टू मीट अ लॉयर. Yes, it is true. True. Yes, it is true. A part, tree, true. B. David Copperfield. David Copperfield was Trotwood's grandnephew. Yes. Yes, Weber. 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 Yes, Dipali. Why it is false? Tell me its reason. No. Read, read first line. Yes, it is true. Huh. Yes, it is true. It's this line is on page number 118. Yes, it is true. So yes, see. David's aunt was unhappy with the arrangement. When David's aunt went to Wakefield's house, she saw many arrangements to stay David there. So she was happy or unhappy to see the arrangements? She was happy. So it is false. Yes. Yes, it is D part. Okay. Then D part.
एनी वॉज डॉक्टर स्ट्रॉन्ग्स डॉटर। क्या एनी डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की डॉटर थी? यस, इट्स ऑल्सो फॉल्स। Yes, Annie was Dr. Strong's miss is not daughter. It's also false. E part. Uriah Heep kept a secret watch on everyone. Yes, it's true. Yes, yes. So first is true, first, second, both are true. Third, fourth, both are false, and last one is true also. Done? Have you done all parts of second sum? Second question. Just switch off your microphones. Third question. Who said the following and to whom? किसने ये लाइंस किसने किसको कही? स्पीकर होता है बोलने वाला, लाइंस एड्रेस टू जिसको बोली गई। वेल, स्पोकन लाइंस फर्स्ट इज वेल व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, कि आपको कौन सी चीज यहाँ लेके आई? हु वाज द स्पीकर? यस, यस, यस। Yes, first is Mr. Wickfield, 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 and line attached to Miss Trotwood. Trot, Trotwood. Yes, Miss Trot. Yes, Miss Trotwood को ये lines address की गई थी. Second is I need your advice on the best school. Who is the speaker? Yes, 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 Miss. Yes, yes, Miss Trotwood, Trot, Trot, Wood, Trotwood is the speaker of these lines, this line, and this line is addressed to Mr. Wickfield. Mr. Wickfield, आपने एक लाइन में ही लिखना है, मेरे पास स्पेस यहाँ नहीं है, तो आप अच्छे से इसको मेंशन करोगे। यस, बुक में मेंशन करोगे। नेक्स्ट थर्ड, एट द रेट the doctor is working, it would take years to complete the dictionary. Who is the speaker of this line? Speaker of speaker of this line is a head boy, and it is addressed to David Copperfield. You can write David also. Head boy ने David को बोली थी. Okay. Fourth, even I feel a little uneasy in his presence. Hmm. Hmm. ये ये Agnes is the speaker of this line, and this line is addressed to David. एग्निस ने भी बोला था कि इवन आई फील लिटिल अनईजी इन हिज प्रेजेंस, वो कहती मैं भी इसकी प्रेजेंस में अनईजी फील करती हूँ, अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। एग्निस एंड यस, यस, यस। 7 years have passed, I am 17 now and the head boy at school. किसने बोली थी? स्पीकर 7 years went past in this way. Yes, its speaker is David. Speaker is David, and lines addressed to readers. रीडर को, पढ़ने वालों को। तो हमें बता रहे हैं ये, वो कह रहा है कि अब मैं 7 years पास हो चुके हैं और अब मैं 17 years का हो गया हूँ और मैं स्कूल में हेड बॉय भी हूँ। डन? ओके, नोट डाउन दीज आंसर्स।
Done? Have you done? Everybody has done? I'm going to rub this question number 3. Everybody has done? Yes, everybody has done? Yes, एक minute. Fifth speaker David or lines addressed to reader. Okay, I'm going to present screen. Is it visible? But a network issue होगा. Network issue. Visible now? Okay, okay, okay. Everybody has done question number 3. Okay. Now move to question number 4. I'm going to rub question number 3. Move to question number 4. Choose the correct answer from the options given. यहाँ से आंसर चूज करने हैं हमने. First is question number 4. First is David was first brought to Mr. Wickfield at the age of. डेविड मिस्टर विकफील्ड के पास किस एज में आया था? फर्स्ट ऑप्शन इज 8 years, सेकेंड इज 10 years, थर्ड इज 12 years. check his age. Option. Yes, 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 10 years. उसने भी- yes, हाँ. थर्ड क्वेश्चन में भी हमने रीड किया. फिफ्थ पॉइंट में 7 years हैव पास, आई एम 17 years नाउ. 7 years पास हो गए तो अब वो 17 years का है, तो कब आया था? 10 years का. फाइन. सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. बी. मिस बैटसे ट्रॉटवुड वॉज डेविड कॉपरफील्ड्स. सेकेंड, मिस बैटसे ट्रॉटवुड वॉज डेविड कॉपरफील्ड्स aunt. Yes, she is. Yes, she was his aunt. So third is the correct option. Right? Now C parties. Miss Trotwood's decision was to. Miss Trotwood ने क्या decision लिया था डेविड के लिए? To send David to school. Yes, to send David to school. डेविड को स्कूल में भेजा जाए. B point. The previous school attend. बेटा माइक्रोफोन ऑफ करिए. The previous school attended by David was Mr. Wickfield, Miss Trotwood's, Mr. Crackles. तो यस, क्रेकल्स उसने एक लाइन में बताया. 119 पेज पे है. दिस वॉज एन एक्सीलेंट स्कूल वेरी डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर क्रैकल्स. तो उसका प्रीवियस स्कूल था मिस्टर क्रैकल स्कूल. थर्ड पॉइंट इज द करेक्ट ऑप्शन. Then E point. The school which was eventually selected was.
स्कूल किसने? यस, मिस्टर विकफील्ड ने सिलेक्ट किया था, लेकिन था कौन सा? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग्स स्कूल। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नोट डाउन दीज आंसर। आंसर ऑफ ए, ओके, आंसर ऑफ, इसको स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही, आंसर सुन सकते हो। पार्ट ऑफ ए इज सेकेंड आंसर, देन बी पार्ट का आंसर है थर्ड पॉइंट, देन सी पार्ट का फर्स्ट पॉइंट, डी पार्ट का थर्ड पॉइंट एंड ई पार्ट का फर्स्ट पॉइंट। डन? डन? ओके, ओके, नाउ move to next page, page number 124, 124। C, test your grammar. So positive degrees, comparative degrees and superlative degrees are given. There are 10 degrees. तो 10 degrees given है, उसमें fill-ups given है, तो हमने वो fill-up complete करनी है। First degree is positive, second is comparative, third is superlative degree. So first क्या given है? Humble। तो हम्बल में फिलअप गिवन है सेकंड। मैं फिलअप के आंसर ही नोट डाउन करूंगी। सेकंड फिलअप में फर्स्ट की सेकंड फिलअप में आप नोट डाउन करोगे मोर हम्बल। हम्बल की कंपैरेटिव डिग्री मोर हम्बल, मोर हम्बल। वेरी गुड, मोस्ट, मोस्ट हम्बल। ये जस्ट मैं फिलअप्स के आंसर ही नोट डाउन कर रही हूं। यस, हम्बल होता है जैसे कोई पर्सन प्राउडी नहीं होता, घमंडी नहीं होता, वो मीन्स हम्बल होता है, हर किसी की रिस्पेक्ट करता है। फाइन। और उसमें ऐसा नहीं होता कि वो अकड़ता नहीं है किसी के सामने। फाइन। हाँ, जिसमें घमंड नहीं होता, प्राउडी नहीं होता, वो हम्बल होता है, हम्बल पर्सन। नेक्स्ट सेकंड इज, सेकंड में फर्स्ट फिलअप ब्लैंक है, सेकंड गिवन है ट्रूअर। फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू और थर्ड इज ट्रूएस्ट। ट्रूएस्ट स्पेलिंग अच्छे से चेक करना, ट्रूएस्ट। यस, थर्ड, थर्ड में लास्ट गिवन है सुपरलेटिव डियरेस्ट। तो डियर, डियर, डियरर और थर्ड इज डियरेस्ट। यस, फोर्थ इज डिम, डिमर, डिमेस्ट, डिम, डिमर, डी आई डबल एम ई आर, डिमर। और थर्ड इज डिमेस्ट, डी आई डबल एम ई एस टी, डिमेस्ट। फिफ्थ इज प्रेटियर, प्रिटी, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, डबल टी आई ई एस टी। एंड यस, मोर चार्मिंग। यस, मोर एंड मोस्ट। यस, मोर और लास्ट में मोस्ट चार्मिंग। डन? ओके, सिक्स में, ओके सिक्स में आपने कंप्लीट लिखना है, मैंने मोस्ट तक ही लिखा है, आप लास्ट में लिखोगे मोस्ट चार्मिंग। सेवंथ इज, यस, यूजफुल। ये हमने किए थे, टू सिलेबल वर्ड थे जिसको सेपरेट किया जा सकता है, उनके साथ मोर और मोस्ट यूज होता है। यूजफुल, मोर यूजफुल गिवन है, तो मोस्ट यूजफुल आएगा लास्ट वाला, मोस्ट यूजफुल। डन? एट इज लिटिल, लिटिल का आएगा लेस और लीस्ट, लीस्ट।
little, less, least. और नाइन्थ इज बेटर गिवन है. यस, वेरी गुड. गुड. बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. टेंथ इज मोस्ट इज गिवन. यस. और टेंथ इज मोर, मोर, मच, मोस्ट. मोर, मच, मोस्ट. अभी फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, जस्ट वेट. यस, मोर के बाद मच. बेटा जस्ट वेट. गोइंग टू प्रेजेंट माई स्क्रीन अगेन. इज इट विजिबल नाउ? मोर के बाद आएगा मच. यस. ओके, ओके, ओके. कंप्लीट दिस वर्क. Everybody has done? Yes. Okay, now move to D part, fun with vocabulary. Move to D part, fun with vocabulary. Have you done? Everybody has done C part? Yes? Ninth, good, better, best. Now move to its D part. D part, fun with vocabulary. Tick mark the correct spelling. I will written correct spelling on my screen. तो मैं स्क्रीन के ऊपर correct spelling मेंशन करूंगी. आपने वो मैच करने हैं. कहाँ पे हैं? मैं आपको नंबर बोलूंगी. ए का 1 2 3 के ए में अगर 1 करेक्ट है तो 1 बोलूंगी, 2 करेक्ट है तो 2 बोलूंगी. फाइन, गॉट इट? यस. तो ए पार्ट में कौन से स्पेलिंग करेक्ट है ऑटम के? AUT, AUTUMN. ऑटम मीन्स सेकेंड. फाइन. तो मैं इसके साथ नंबर भी मेंशन कर सकती हूँ. सेकेंड. बी पार्ट में ऑफुल. ऑफुल के स्पेलिंग कौन से करेक्ट है? AWE, ऑफुल. यस. नो बेटा, फर्स्ट वाले ऑफुल. AWE, ऑफुल. यस. सी. सी ऑलमोस्ट. ALMOST, ऑलमोस्ट. सेकेंड. सी का 2. डी का सेकेंड. ऑल टूगेदर. यस, ऑल टूगेदर. सेकेंड. और ई पॉइंट का एरोप्लेन. AERO. यस, एरोप्लेन. फर्स्ट वर्ड. यस. एफ का बुचर. BUTCHER. बुचर. सेकेंड. जी का कमिश्नर. यस, गुड. थर्ड. COMMISSIONER, कमिश्नर. थर्ड पॉइंट. डन. बस आपके साथ टिक मार्क करिए. आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, टिक मार्क करिए. एच का थर्ड. डायलॉग. DIALOGUE, डायलॉग. थर्ड. यस. आई का फर्स्ट. इंडिपेंडेंस. जे का बेटा 1 by 1. स्टॉप इट. 1 by 1. NER,
GHBOUR, जे का सेकंड एंड के का थर्ड, RE, रेस्टोरेंट, एल का सेकंड, TRAVELLER, ट्रैवलर, इट्स सेकंड. So complete. Everybody has done. बेटा सभी स्टूडेंट्स का हो चुका है डी पार्ट विद वोकैबुलरी. ओके. नाउ लिसन. Listen, you will note down its second part as a homework. Second part में क्या है? Pick out antonyms from the words given in the box given below and write it against the blank given. तो blank given है barren, barren होता है बंजर, तो इसका opposite होगा fertile, उपजाऊ. तो येलो बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, और जहां ए बी सी डी ऐसे पार्ट गिवन है, इनके आगे इनके एंटोनियम वर्ड लिखने हैं आपने. डन. डू इट एज अ होमवर्क. ऑल्सो टिक पार्ट बी, राइटिंग स्किल्स. इट्स ऑन पेज नंबर 123. राइटिंग स्किल. व्हाट इज योर आइडिया ऑफ एन आइडियल टीचर? कि आपके व्यूज में आइडियल टीचर कैसा होता है? यहाँ नेक्स्ट पेज में 124 पेज पर येलो बॉक्स में वर्ड्स गिवन हैं. आप वो वर्ड्स यूज करके आइडियल टीचर के बारे में 8 to 10 लाइंस नोट डाउन कर सकते हो. फाइन. वो लाइंस में जो वर्ड्स गिवन है, क्लू बॉक्स में गिवन है, वो वर्ड्स आने चाहिए आपकी लाइंस में. डन. ओके. और बी पार्ट में एज अ होमवर्क कंप्लीट. सेकंड. सेकंड. Yes. Yes. Fine. Done. Okay. Now we will leave this meet. Yes. बेटा एग्जाम बता दिया जाएगा. फेब के लास्ट में स्टार्ट हो सकते हैं या मार्च की स्टार्टिंग में. आप अपनी प्रेपरेशन रखिए, जो भी सिलेबस है अच्छे से रिवाइज करिए. डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके. ओके. लीव दिस मीट. बाय. बाय.